Hello and good afternoon, everyone. It is Taskin Fatima from IEEE Bahria University Lahore campus, and I welcome you all to the fifth orientation of IEEE Lahore section. And today we have two guests right here with us, Mr. Muhammad Hamza, who is the chair, and the second is Mr. Sumama Zain, who is the SEC representative of IEEE Lahore campus, Lahore section, sorry. And as for the Mr. Hamza, I would like to introduce him. He is the TED speaker network specialist at Jazz, a limited sec chairman of IEEE Lahore section. He have won the several awards in the IEEE and also a graduate from the IEEE Core. He would like to say a few words to you guys, and then we will move on to the Mr. Sumama Zain, who will tell you more about the IEEE, and then we will move to the question answer section. All right. And now I would like to invite Mr. Muhammad Hamza to say a few words. Assalamu alaikum. I hope all of you can hear me. Yes, we can. Okay, wonderful. So thank you very much, IEEE Bahia University Lahore campus team for inviting us to have an orientation with you guys. I am Mohammad Hamza Ihtisham. I am network supervision specialist at Jazz. I'm TEDx speaker, IEEE Volt graduate plus mentor. IEEE Volt is the global program of IEEE. The Volt stands for like a volunteer leadership training program. I'm currently serving as a selected at Triple Law section, and I have won different multiple awards during my IEEE career related to the volunteerism and technical awards as well. So, what is IEEE? I will try to share some basic things with you guys, and so Mama is here with me, and he will guide the all technical and the in-depth details of IEEE in his presentation. I will share the overall spectrum, and after that we will have the question answer session. I will be here, Mama will be here. If you have any kind of question related to IEEE, related to your personal career, or your professional career, your educational things related to IEEE, we will try our best to give you the optimum answer. So what is IEEE? क्या है IEEE? क्यों है IEEE? और हम सब यहाँ पे क्यों हैं? हम सब यहाँ पे सिर्फ एक इशू नहीं कह सकते, एक एक एजेंडा, एक मोटिव के जो है ना तहत यहाँ पे जमा है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हम एक IEEE की वजह से यहाँ पे जमा है। और क्या है ये IEEE और क्यों है ये IEEE, कहाँ से है ये IEEE? एडिसन और ग्राहम बेल को ऑलमोस्ट सब साइंटिस्ट, सब इंजीनियर, सब फिजिसिस्ट, सब साइंस स्टूडेंट्स जानते हैं। साइंस स्टूडेंट्स नहीं भी जानते, इट्स हर कोई जानता है। इट्स काइंड ऑफ जनरल नॉलेज थिंग्स। और IEEE को जो है ना ग्राहम बेल और थॉमस एडिसन ने 1884 के अंदर स्टार्ट किया था। ग्राहम बेल जो थे वो एक टेलीकम्युनिकेशन या उनका जो रोल था वो एज एन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था। और थॉमस एडिसन जो एक बल्ब के इन्वेंटर हैं और जिनके नाम बहुत सारे पेटेंट्स हैं, वो उनका जो था ना वो पावर के लिहाज से, पावर पॉइंट ऑफ व्यू से इनका रोल था IEEE में। ये सब लोग जमा हुए, इन्होंने कहा यार पूरी दुनिया में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, हम यूएस में बैठे हुए हैं 1884 में, जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे कोई नेटवर्किंग नहीं है, तो हम कैसे
ग्लोबली कनेक्ट कर सकें, कैसे हम जो है ना लोगों को एंगेज कर सकें कि जो है ना हम अपनी रिसर्च और अपनी चीज़ें जो है वहाँ पे शोकेस कर सकें ताकि लोग पूरी दुनिया में वैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इन दो लोगों ने मिलकर नेटिव फोन में एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था IRE। हाँ मैं ख्याल मतलब मामा आपको डिटेल में बताते हैं। अच्छा तो इन्होंने स्टार्ट की विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो इवॉल्व होती गई, नए लोग आते गए और क्या कहते हैं नई चीज़ें बनती गई और एट द एंड ये जो है ना IEEE में ट्रांसफॉर्म हो। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। लेकिन जब ये IEEE में ट्रांसफॉर्म होंगी फिर इसके अंदर जो है और सोसाइटीज़ और सब चैप्टर्स और एफिनिटी ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। जब इतनी बड़ी जो है वो आपके पास एडवांस सोसाइटी बन गई जहाँ पे हर तरह का आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक चैप्टर है, हर तरह का आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक आपके इन्फिनिटी ग्रुप्स हैं, तो तब जो है ना IEEE considered as the world largest organization and और अब right now in current scenarios IEEE is the world largest technical and professional organization with around 4 lakh to 4 lakh and 20,000 members around the world। और इस टाइम जो है IEEE के अंदर ऑलमोस्ट हर फील्ड ऑफ जो है ना करियर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कैटर होता है। कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन है, बायोमेडिकल है, फिजिक्स है, आपकी फोटोनिक सोसाइटी है, ओशनिक सोसाइटी है, व्हीकुलर नेटवर्क सोसाइटी है। इट्स ऑल अपॉन यू कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसके मुताबिक वो अपनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की सोसाइटी ज्वाइन करते हैं और उसके अंदर जो है ना नई लेटेस्ट रिसर्च देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो कर जाते हैं। अब IEEE एक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर जिसमें जो है वो IEEE एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जहाँ पे जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड है और डेफिनेटली इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन तो होगा ना कि यार पूरी दुनिया में अब वो छाई हुई है, इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं इसके, इतने ज़्यादा लोग हैं और सब लोग कर रहे हैं। तो उनका मिशन ये है कि टू फोस्टर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एक्सलेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो IEEE का जो कोर मिशन है, ये कोर पर्पस है, वो ये है कि जो आप एडवांसमेंट लेके आए, जो टेक्निकल इनोवेशन लेके आए अपने चीज़ के अंदर, उसका कोर या उसका जो टारगेट है ना फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। बियॉन्ड IEEE ये हमारा क्या कहते हैं एज एन ह्यूमन, एज एन मुस्लिम भी हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो है ना वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो अब ये है कि IEEE कहता है कि जो आप अपनी टेक्निकल इनोवेशंस लेके आए, आप कुछ भी टेक्निकली नया बनाएं, तो उसका आप जो है ना पहले फोकस ये रखें कि ये ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी पे क्या इफेक्ट करेगा, इसका ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉरी उसामा जमील, इसका मतलब ये नहीं है आपके जो है जो आप लेके आए कोई इतनी बड़ी चीज बना लें कि जो ये बनेगी तो ही ह्यूमैनिटी को इफेक्ट होगा। आप कुछ भी मतलब इतना बड़ा सोचना शुरू करते हैं। ये वेरी बेसिक थिंग्स, आप अपने कुछ फाइनल ईयर या अपने सेमेस्टर्स में आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप अपने कुछ भी नया बनाते हैं तो आप उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर फाइंड आउट करें, आप उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन जो है ना वो लाइक सर्विस ऐड ऑन करें कि यार ये चीज़ जो है ना ये ह्यूमैनिटी को फ़ायदा दे सकती है, ये चीज़ जो है इतने लोगों को फ़ायदा दे सकती है। आप अपने घर में अपनी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर आप लाइक आप वहाँ के बल्ब ऑटोमेट कर दें कि जी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी तो बल्ब लाइट स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी, नहीं गुजरेगी तो ऑफ रहेंगी, मतलब कोई। तो आप डेफिनेटली आप ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की अंदर जो है ना आप अपनी मतलब अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर आप अपना ऐड ऑन कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज अपनी लोकल कम्युनिटी को दे रहे हैं।
तो ये IEEE का एक विजन है कि आप जो है जो भी इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, जो भी आप एक डिफरेंट यूनिक सोच रखते हैं, तो उसका जो है ना जो आपका टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार इससे लोगों को फायदा हो। अब अगर हम अब की बात करें, जैसे अभी अब आपकी टीम जो है वो एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इससे भी लोगों को फायदा हो रहा है। मतलब आप डेफिनेटली कोई प्रोजेक्ट से नहीं लोगों को फायदा दे रहे हैं, आप किसी भी तरह लोगों को फायदा दे रहे हैं। आप उनको बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, आप एजुकेशन तो नहीं कह सकते, बेहतर आप जो है एक स्किल सेट दे रहे हैं, आप उनको एक नया फील्ड ऑफ लाइक नई फील्ड से, नई टेक्निकल फील्ड से उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये भी उनको फायदा हो रहा है। तो जो भी चीज़ आपको लगे कि यार ये लोगों के फायदे के लिए है, वो ही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली IEEE से कनेक्ट करती है। अच्छा, व्हाट इज द विजन ऑफ IEEE? अच्छा, अब IEEE का मिशन मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी करें वो ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। अब विजन क्या है, अब वो क्या सोच क्या रखते हैं कि इस मिशन को हमने कैसे फुलफिल करना है। ठीक है जी। IEEE will be the essential to the global technical community and technical professions everywhere, and be universally recognized for the contributions of technology and of the technical professions in improving global conditions। ग्लोबल कंडीशंस आप जो ये है ना, इम्प्रूविंग ग्लोबल कंडीशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्लोबल कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? ग्लोबल कंडीशंस आप कुछ भी लें, अगर आप बड़े बड़े स्पेक्ट्रम पे देखते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बिग पिक्चर देखते हैं उसकी, तो ग्लोबल कंडीशंस कौन सी हैं? ग्लोबल कंडीशंस हमारी हेल्थ हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे क्लाइमेटिक इश्यूज हैं, हमारे जो है वो फूड कार्बन फुटप्रिंट्स रिडक्शन है, उसके ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज हैं। तो ये एक ग्लोबल जो है ना वो आपकी कंडीशंस हैं जो IEEE। तो ग्लोबल कंडीशंस हैं ये सारी। तो अब आप उनको कैसे बनाते हैं, आप उनको कैसे उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, ये IEEE का विजन है कि आप अब पूरी दुनिया के अंदर IEEE के टेक्निकल लोग अवेलेबल हैं, टेक्निकल प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, जो अपनी छोटी छोटी जो है ना वो इनपुट से अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। और कम्युनिटी बिल्ड के अंदर आप कुछ भी चीज़ करें, आप प्रोजेक्ट्स करें, आप कुछ भी आप वहाँ पे चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों से मिलें, अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है, काइंड ऑफ कम्युनिटी, टेक्निकल कम्युनिटी आपकी बिल्डिंग होगी। और उसके अंदर फिर आप कुछ भी आप अपनी वैल्यू एड ऑन करेंगे, तो वो आपको IEEE क्या जो है एक काइंड ऑफ विजन ही देती है कि जी आपने टेक्निकली एक कम्युनिटी बनाई, आपने उसमें इनपुट्स दी, लोगों से मिले, और आपने ग्लोबल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिए। तो ये बेसिक एक छोटा सा वी है IEEE का। और ज़्यादा टाइम नहीं है लूँगा मैं, और मेरी तरफ से बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम जो है वो चीज़ें वगैरह भी शेयर करते रहते हैं आप विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप जो है अब अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, तो आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अभी यहीं पे हूँ। दो लोगों ने क्वेश्चन किए, हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना वो उस मामा की प्रेजेंटेशन के बाद रखेंगे। वी विल हैव लाइक ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। और अब मैं कहता हूँ सुमामा को मैं हैंड ओवर करता हूँ आगे से प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग from my side. Mama is here for continuing the next part of the presentation. Thank you so much, Mr. Hamza. And now we will move on to Mr. Sumama Zain, who is the final year engineering student of and is the SAC representative in the IEEE Lahore section, and also the chairperson of IEEE UET. Uh, and he also is a part of AWS Educate Student Ambassador, and also the leader of the AWS user Lahore. AWS, as for AWS, AWS stands for the Amazon Web Services, and recently he is selected as the AWS Startup Community Leader and the AWS Community of Pakistan. Moreover, he also a Microsoft Student Ambassador and Director Public of the Turtle Club in Lahore. So thank you, Mr. Sumama Zain. Now you can start talking.
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सो आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका असल मकसद ये है कि IEEE के बेनिफिट्स बताए जाएं आपको कि आप IEEE क्यों ज्वाइन करें, और एज अ स्टूडेंट जो हमारे दरमियान 36 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उनको IEEE से क्या बेनिफिट्स पहुंच सकता है, वो इस क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलता हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैं IEEE लाहौर सेक्शन में सैक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब ये लाहौर सेक्शन और सैक रिप्रेजेंटेटिव क्या चीज़ है ये मैं बताऊँगा। मजीद ये कि IEEE में मैं चेयरपर्सन हूँ, जिस तरह इधर फरहान चेयरपर्सन है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं, और वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में अमेजोन वेब सर्विसेज का स्टूडेंट एम्बेसडर, कम्युनिटी बिल्डर, और उनका यूज़र ग्रुप लीडर और कम्युनिटी लीड एट AWS कम्युनिटी पाकिस्तान। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैं AWS स्टार्टअप स्काउट भी जो है वो सिलेक्ट हुआ हूँ, और इसके अलावा रोटा क्लब ऑफ लाहौर में भी मैं वॉलंटियर करा। सो ये तो हमने बात कर ली IEEE की, जैसे कि हमजा भाई ने काफ़ी बताया। हम IEEE तब से करी जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि IEEE की एब्रीविएशन क्या है। अमूमन ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो है वो इसकी एब्रीविएशन है। अब ये जो एब्रीविएशन है ये सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। अब इसके चार्टर मेंबर की जब हम आते हैं तो इसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एडिसन मौजूद है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज से 5-10 साल पहले की नहीं है, ये 1884 की एग्जिस्ट कर रही है। आप लोगों से देख सकते हैं कि फिजिक्स के फिनोमिनन से जो है वो लोगो ड्राइव हुआ। अब IEEE जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है ये कैसे फॉर्म हुई थी 1884 में AIEE अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और 1912 में फॉर्म होते इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स। उसके मर्जर हुआ था और रीब्रांड हुई थी 1963 में। 1884 से लेकर 2021 तक आप देख सकते हैं IEEE ने कितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स जो है वो इस दुनिया में मौजूद हैं और जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप उस एक लार्जर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो दुनिया में एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये क्विक फैक्ट्स हैं। हमारे तकरीबन 5 लाख के करीब 160 ममालिक में मेंबर्स हैं। ये सिर्फ बैरिया यूनिवर्सिटी में नहीं, ना सिर्फ पंजाब में नहीं, ना पाकिस्तान में, ना एशिया में, पूरी दुनिया में IEEE के मेंबर्स हैं। आपने कहीं भी बाय स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो आपको कहीं ना कहीं IEEE के प्रोफेसर वगैरह मिल जाते हैं। हमारे तकरीबन 1 लाख के स्टूडेंट मेंबर्स हैं। अब ये मेंबर्स क्या होता है, स्टूडेंट मेंबर्स क्या होता है IEEE के, ये प्रोफेशनल मेंबर क्या है, सीनियर मेंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। और इसी तरह अब 324 सेक्शंस हैं इन 10 जियोग्राफिक रीजन्स हैं। ये क्या चीज़ है, डिफरेंट ब्रांचेस क्या चीज़ है, सोसाइटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। पहले बात करते हैं दुनिया के नक्शे के। IEEE ने दुनिया के नक्शे को जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम किया। IEEE ने जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम किया, और पाकिस्तान जो है वो रीजन 10 में आता है, पाकिस्तान से लेके न्यूजीलैंड तक। अमेरिका के आप देख सकते हैं 1 से 6 रीजन है, बाकी एशिया और यूरोप रीजन 8 में आता है। तो हर रीजन को इस तरह डिवाइड किया, उसके बाद सेक्शंस आते हैं। हिस्ट्री की तरफ देखें, 1 जनवरी 1963 को IEEE फॉर्म हुई थी, और उसके बाद IEEE लाहौर सेक्शन फॉर्म हुआ था 19 सितंबर 1968 को। अब ये सेक्शन क्या है ये भी मैं बताता हूँ। जिस तरह IEEE रीजन्स में डिवाइड है, फिर हर रीजन के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो जिसमें से एक सेक्शन जो है वो लाहौर सेक्शन है। पाकिस्तान जो है वो 3 सेक्शंस पाकिस्तान में लाया करते हैं, लाहौर सेक्शन, इस्लामाबाद सेक्शन और कराची सेक्शन। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट ब्रांचेस आती हैं। तो अगर हम देखा जाए नीचे से अबव की तरफ हम चलते हैं, बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, उसके बाद IEEE लाहौर सेक्शन, उसके बाद जो है वो रीजन आता है। तो जिन ममालिक में जो है वो 4 सेक्शंस होते हैं वो एक काउंसिल बना लेते हैं। तो वो भी इस तरह होता है, बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस सेक्शन, अगर काउंसिल एग्जिस्ट करती है, काउंसिल फिर रीजन। अब IEEE आप क्यों ज्वाइन करें, मैंने क्यों ज्वाइन की थी, हमजा भाई IEEE में क्यों वॉलंटियर कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ 36 अफराद मौजूद हैं, अब 39 के करीब हो गए हैं, तो वो क्यों इस प्रेजेंटेशन में आए। ऑब्वियसली उनका कोई मकसद है, वो सीखना चाहते हैं, कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, या वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं। जहाँ तक बात रह जाती है नॉलेज की,
तो आप टेक्निकली करंट रहते हैं। टेक्निकली करंट रहने से क्या मुराद है, आप IEEE की जब आप मेंबरशिप लेते हैं, अब ये IEEE की मेंबरशिप की मैंने बात की, इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज IEEE मेंबरशिप, IEEE मेंबरशिप से क्या मुराद है। आपको ओवर द ईमेल वीकली न्यूज़लेटर आता है, आपको जो है वो इसके अलावा मैगजीन्स आते हैं, आप जो है वो डिफरेंट, आपको टेक्निकल रिसोर्सेज तक एक्सेस मिल जाती है, और मजीद बहुत कुछ है जो आप जो है वो IEEE से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल IEEE.tv एक प्लेटफॉर्म है, आप जो गूगल जाके लिख सकते हैं कि आपको वहाँ टेक्निकल जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। IEEE की डिफरेंट मैगजीन्स हैं, और अब इसके अलावा IEEE की डिफरेंट सोसाइटीज भी हैं। स्पेक्ट्रम मैगजीन की जैसे मैंने बात की, इसी तरह न्यूज़लेटर बेशुमार है, हर सोसाइटी के अपने न्यूज़लेटर होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये IEEE एक्सप्लोर, आप सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी सारे, इसमें आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखने हैं या MSc के रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, तो आप IEEE के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तो वो कहाँ से डाउनलोड करता है, IEEE एक्सप्लोर से डाउनलोड करता है। तो IEEE की मेंबरशिप की काफ़ी सारा टीयर्स, उनमें से एक बेनिफिट ये भी है कि आपको IEEE की मेंबरशिप मिलती है। अब ये तो सारी बातें हम कर दी टेक्निकली, आप करंट कैसे रह सकते हैं, आप अपने करियर में किस तरह हेल्प ले सकते हैं। आप IEEE रेज्यूमे लैब पे जा सकते हैं, आप रेज्यूमे बना सकते हैं अपनी। आप माई IEEE से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ईमेल की फॉर्म में और गूगल ड्राइव के फॉर्म में और गूगल मीट के फॉर्म में, वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसी तरह IEEE की डिफरेंट अवार्ड्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अब कॉन्फ्रेंसिस में आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलता है जब आप IEEE मेंबर होते हैं। अब जैसे अगर आप देखा जाए, smamazaim@IEEE.org, ये वाली जो ईमेल है, ये बिजनेस ईमेल कहलाई जाती है, और ये IEEE की आपको मिलती है, और इसकी काफी सारी वैल्यू होती है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इससे कैसे बेनिफिट पिक करना है। इसी तरह आप IEEE में वॉलंटियर करते हैं और नेटवर्किंग के थ्रू अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज फरहान से जो है मेरे कम्युनिकेशन है और आप सबको एम्पावर किया है, तो ऑब्वियसली कल आप लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर एनहांस होंगे, तो आप डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज से आप इंटरेक्ट करेंगे, और आपको सीखने का मौका मिलेगा, और आप जो है वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करेंगे। इसके अलावा एक और चीज ये होती है ट्रैवल ग्रांट्स। IEEE ट्रैवल ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो था वो ट्रैवल ग्रांट पे सखर गया था, फुल स्पॉन्सर, और IEEE की एनुअल कांग्रेस थी पाकिस्तान, उसका नाम है PSYWSE। तो वो कांग्रेस अटेंड करने गए थे, पूरी पाकिस्तान से उसे उधर प्रोफेशनल्स आए थे, हर स्पेसिफिक अपनी यूनिवर्सिटी का लीडर वहाँ मौजूद होता है, तो वो आपको टेक्निकली प्रोफेशनली ग्रो करने का एक मौका मिलता है। अब ये हमने बात की, इसके अलावा आप IEEE में वॉलंटियरिंग करते हैं। अब जैसे मैं आज यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, IEEE जो है वो मुझे पे नहीं कर रहा, मैं वॉलंटियर हूँ IEEE में। हमजा भाई आए थे, IEEE में वॉलंटियर है। फरहान IEEE में वॉलंटियर है। इसी तरह सारे लोग वॉलंटियर, और हम एक जो इल्म है, जो नॉलेज है, हम आप सबको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने आप को टेक्निकली और प्रोफेशनली ग्रो करें। ये सारी बातें तो प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छी लग रही हैं, जो मैंने लिंक्स इसमें लिखे हैं वो मैं जाके आपको दिखाऊंगा अभी, कि आपने स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी, ग्रांट्स कैसे विन करनी है, और लोगों ने ग्रांट्स कैसे विन की हुई है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब अभी आप अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में हैं और आप IEEE की मेंबर हैं, तो IEEE की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ओवर द अंडर ग्रेजुएट लेवल भी आती है और MSc में भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MSc में कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल MSc किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि UET की एक स्टूडेंट है जो साउदर्न पंजाब की यूनिवर्सिटी थी, उधर से उन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, और UET लाहौर से अब MSc कर रही है मेगाट्रॉनिक्स। उन्होंने एक स्कॉलरशिप था, उसके लिए अप्लाई किया, और उन्हें $5,000 जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड हुई IEEE की तरफ से। अब वो उनको क्यों अवार्ड हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, यानी अपने जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें IEEE में वॉलंटियर किया था। तो वो IEEE एक ऐसा दरवाजा आपके लिए ओपन कर देता है कि आपको वो, आप उन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको अप्लाई करना पड़ता है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो आप इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। इजीली सिलेक्ट होने से मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि जब काफी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी का पता नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप अप्लाई करेंगे और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मेंबरशिप्स पे डिफरेंट डिस्काउंट्स है, ऑल अराउंड द ईयर डिस्काउंट आता रहता है। हर स्पेसिफिक टीयर्स है डिफरेंट, इसमें चीजें हैं, सोसाइटीज की मेंबरशिप डिफरेंट है, मैगजीन्स की मेंबरशिप डिफरेंट है, तो और रीजन वाइज, सेक्शन वाइज भी जो है वो डिस्काउंट मिलता रहता है। ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है, हम बात तो करें IEEE के विजन की, मिशन की, IEEE के जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, IEEE के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, स्मार्ट केन एक प्रोजेक्ट था ब्लाइंड लोगों के लिए। उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ह्यूमैनिटेरियन को सर्व किया गया था यूटी लाहौर। मैं चूंकि यूटी लाहौर का स्टूडेंट, इसलिए मुझे जो ज्यादातर एग्जांपल है वो यूटी लाहौर की। अब इस तरह है कि उन्होंने अप्लाई किया IEEE के फंड के लिए और उनको IEEE फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मिल गया। तो इसी तरह आप भी IEEE प्रोजेक्ट करते हुए ह्यूमैनिटेरियन जो है वो उसको आप कैश करा सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए हेल्प कर सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, फाइनल ईयर का पोस्टर तो सभी बनाते हैं, वीडियो भी सभी बनाते हैं प्रोजेक्ट की। वो वीडियो आपने अप्लाई सिर्फ आपने अभी कंपटीशन आई गेस ओपन है, आपने अप्लाई करना होता है और आप उस कैटेगरी में फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं और फिर आप जो भी उनका क्राइटेरिया IEEE इंटरनेशनल का आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब ये सारी बातें तो हमने कर दी, मगर पॉइंट ये है कि आप हमारा मकसद था कि आप तक इंफॉर्मेशन कन्वे करना, और अब आपने करना है गूगल व्हाट इज IEEE, हाउ टू गेट दिस बेनिफिट IEEE। इवन आप IEEE के मेंबर हैं और आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप IEEE किस उधर कॉन्टेक्ट सेंटर है, वहाँ आप लाइव चैट कर सकते हैं IEEE प्रोफेशनल से। IEEE की तकरीबन 40 के करीब सोसाइटीज है। सोसाइटीज से क्या मुराद है, IEEE की एक मेंबरशिप होती है और IEEE की डिफरेंट सोसाइटीज भी होती हैं। अब इसका ये है कि IEEE में आप ग्लोबल बेनिफिट फाइंडर में जाके अपने रीजनल सेक्शन के लिहाज से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स IEEE ऑफर कर रहा है। इसमें से एक बेनिफिट ये भी है IEEE एक्सट्रीम। अब IEEE एक्सट्रीम एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, 24 आवर्स आपके पास होते हैं, आप टीम में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आप जो है वो इसमें विन कर देते हैं और आप इजीली पाकिस्तान में इजीली आप टॉप पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए IEEE मेंबरशिप कंपल्सरी है। अब IEEE सेक्शंस की हमने बात कर ली, टेक्निकल चैप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर रोबोटिक्स का चैप्टर हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर साइंस का चैप्टर हो सकता है, सोसाइटीज हो सकती है। तो इसी तरह 39 के अराउंड अबाउट सोसाइटीज हो सकते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक हमें जो सोसाइटीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है उस स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड तो आपको वो ज्वाइन करके, आप समझते हैं कि मैं जो है वो रोबोटिक्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं रोबोटिक्स की कम्युनिटी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि उस रोबोटिक्स की कम्युनिटी के फिर आपको स्पेसिफिक न्यूज़लेटर आएगा, आपको स्पेसिफिक जो है वो IEEE कोलैबोरेटेक पे आपको गाइडेंस वगैरह इजीली प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे और IEEE के स्पेसिफिक डेडिकेटेड जो रोबोटिक्स की वेबसाइट है उस पर आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं, कंपटीशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स में अभी लाइव डेमो में आपको बताऊंगा कि आप वहां से कैसे अवेल कर सकते हैं। ये बात करते हैं मेंबरशिप ग्रेड की। आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो आप IEEE के बनते हैं स्टूडेंट मेंबर। आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट मेंबर बन जाते हैं, एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद मेंबर, सीनियर मेंबर और फेलो मेंबर। तो यानी आपकी जो पूरी प्रोफेशनल लाइफ है आप उसमें IEEE के मेंबर रहते हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि आप IEEE स्टूडेंट मेंबर ही क्यों बने और आप फेलो मेंबर तक क्यों जाएं। तो ये अब आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि आपको IEEE किधर हेल्प करता है। IEEE इतनी वास्ट और इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि IEEE हर चीज में ओवरलैप कहीं ना कहीं कर रहा होता है। आप आपके एग्रीकल्चर में IEEE क्या क्या काम है, तो एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में IEEE इंक्लूड है। अब ये मेडिकल की फील्ड में, बायोमेडिकल में क्या काम है IEEE का, वहाँ भी IEEE न्यूरो साइंस में इंक्लूडेड है। इवन EMBS एक सोसाइटी है मेडिकल इंजीनियर जो बायोमेडिकल की फील्ड से रिलेटेड उनके लिए। तो IEEE सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं के लिए। एक मिसकंसेप्शन यहाँ ये भी होती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो ये मैं आगे आपको जो है वो उसके साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि IEEE की कितने मेंबर्स किस सोसाइटी के सबसे ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं 67,000 जो मेंबर्स हैं वो IEEE की कंप्यूटर सोसाइटी के हैं, उसके बाद कम्युनिकेशंस के हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल या दूसरी सोसाइटीज के आते हैं। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं ओशियानिक इंजीनियरिंग के भी यहाँ एक फील्ड है। तो ये सारी IEEE की फील्ड हैं और उनके मेंबर्स हैं और ये सोसाइटीज हैं। आप IEEE की जब एक जेनेरिक मेंबरशिप लेते हैं उसके बाद सोसाइटी की मेंबरशिप लेने का भी आपको बेनिफिट काफी सारा मिलता है, क्योंकि इन सोसाइटीज के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं डेडिकेटेड, अपने मेंबरशिप बेनिफिट्स होते हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। IEEE कैसे ज्वाइन करनी है, हम तब से IEEE करी जा रहे हैं। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, आपको वहाँ IEEE.org पे जाके लॉगिन करना है। सिंपल, आपने जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं आपने अकाउंट बनाना है वैसे अकाउंट बनाएंगे, कार्ट में मेंबरशिप ऐड करते हैं। अब इसकी मेंबरशिप जो है वो $27 की है। अब
इसका मैंने एक बहुत फनी सा कैलकुलेशन की थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं हम मेंबरशिप अफोर्ड नहीं करते, या हमें क्यों मेंबरशिप देनी चाहिए, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है इन रिटर्न। तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि IEEE, अगर आज मैं इस स्टेज पे मौजूद हूँ तो तकरीबन ये 5वां वेबिनार है, और मेरा वैसे पिछले 2 सालों में 50+ जो है ना इवेंट्स पे ऑन कैंपस और ऑनलाइन मैंने जो है वो आके स्पीकिंग की है। मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे टॉक देता हूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग पे टॉक देता हूँ, IEEE पे आके मैं टॉक देता हूँ। तो ये IEEE के प्लेटफॉर्म ही था कि जिसने मुझे एम्पावर किया कि मैं एक फ्रेश जो है वो यूनिवर्सिटी में जब आया स्टूडेंट, तो कुर्सियों पे सामने बैठे हुए थे, ओरिएंटेशन हो रही थी इसी तरह IEEE की, ये डिपार्टमेंट करा रही थी। तो उसमें स्टेज पे एक स्टेज का फियर होता था, तो वो स्टेज का फियर जो खत्म किया था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था IEEE ने ही। तो अगर हम अपनी मेंबरशिप को जस्टिफाई करें तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4,000 की मेंबरशिप है, कितने दिनों में डिवाइड करें, 11 रुपए पर दिन बनती है। बेनिफिट्स मैंने आपको डायरेक्टली बताए हैं, तो ये इस कदर बेनिफिट्स है। इवन अगर बात की जाए एक ईमेल की बात कर लें, अब कोविड से पहले ऑनलाइन मीटिंग्स का इतना ज्यादा रुझान नहीं था, मगर कोविड से पहले गूगल मीट फ्री नहीं होता था, तो IEEE को गूगल मीट फ्री था विद रिकॉर्डिंग, और गूगल मीट बहुत ईजी टू यूज और सारी चीजें अनलिमिटेड था। तो ये चंद काफी सारे बेनिफिट्स हैं जिनमें से चंद मैंने मेंशन किया, और काफी ज्यादा मैं भूल गया, क्योंकि इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट करने पे आए तो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। इसको बेनिफिट्स को ऐसे याद भी नहीं रखा जा सकता। उसकी रीजन ये, हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट है। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है रिसर्च वाली साइड पे, IEEE एक्सप्लोर मौजूद वहाँ उसके लिए मौजूद है, वहाँ उसको एक्सप्लोर करें। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है डिफरेंट और अपोजिट साइड में IEEE एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी की तरफ, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि 50% डिस्काउंट है IEEE की मेंबरशिप पे। आज आप जो है वो विद इन 1 to 2 वीक्स या स्पेसिफिक टाइम मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा कि कब तक 50% ऑफ है, तो आपने खुद ही पेमेंट प्रोसेस करके जो है IEEE की मेंबरशिप लेनी है। ये IEEE की मेंबरशिप के बारे में था। मैं स्क्रीन शेयर करके काफी सारी चीजें बताता हूँ कि IEEE के विजन क्या है, मिशन क्या है। IEEE टेक्निकल इनोवेशन एंड एक्सलेंस फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो आपने जो भी काम करना है टेक्निकली, वो आपने IEEE के बेनिफिट के लिए करना। अब ये students.IEEE.org वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप सिंपल आप जाके देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट ब्रांचेस हैं, कितने स्टूडेंट मेंबर्स हैं, और ये सारी चीजें। अब इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ब्रांचेस आप देख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस स्टूडेंट ब्रांच को रन करने की क्या है। अब आप स्टूडेंट ब्रांच में जब होते हैं तो आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है, और आपको जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। इवन वहाँ डिफरेंट टीम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग की, कंटेंट राइटिंग की, तो वो उस टीम में रहते हुए ग्राफिक डिजाइनर या कंटेंट राइटर बन जाते हैं लोग, क्योंकि उनको IEEE एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप कंटेंट राइटर बने, ग्राफिक डिजाइनर बने, आप होस्टिंग टीम में हो, या आपको मजीद जो है वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अब टीम्स थी, काफ़ी सारे लोगों को मैनेज करना, तो हम डिफरेंट प्रोडक्टिविटी टूल्स जो है वो यूज़ करते हैं ट्रेलो के नाम से, या डिफरेंट जो आपको बाद में सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी हेल्प करते हैं। वो आपको पहले से पता होता है कि आपने कोलैबोरेशन के लिए कैसे आपने जो टीम वर्क में यूज़ करना है। सो आपके जो है IEEE मेंबरशिप डेवलपमेंट किट्स है, इससे मुराद है IEEE स्वैग्स भेजता है आपको। एक बड़ा सा बॉक्स आता है, उसमें आपका IEEE के स्टिकर और पता नहीं IEEE की मर्चेंडाइज काफी सारी होती है, तो वो जो आपके चेयरपर्सन है आप उनसे जो है वो ले सकते हैं। अब मेंबरशिप की बेनिफिट ये देखिए, आपको क्या मेंबरशिप के बेनिफिट मिलने। कोलैबोरेटेक के मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कोलैबोरेटेक से क्या मुराद है। सो इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लान IEEE का मैगजीन, प्रोग्रामिंग कंपटीशन मैंने आपको बताया, इसी तरह स्टूडेंट वोटिंग्स वगैरह। अपॉर्चुनिटीज, ये आप अवार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्चुअल स्पीकर आप यहाँ से बुला सकते हैं, कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स के लिए या कॉन्टेस्ट हैं, फंडिंग एंड ग्रांट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेल करनी है, और आप यहाँ से आपने खुद ही देखनी है। स्पॉन्सरशिप वाला वाले पोर्शन पे आप जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक प्लान की, तो ये IEEE का स्ट्रेटेजिक प्लान है कि अगले 5 सालों में उन्होंने क्या करना है और उनके क्या गोल्स हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। सो IEEE की अवार्ड्स की तरफ हम जाते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये वाला जो अवार्ड है, मुझे ये इसलिए याद है कि ये हमारे स्टूडेंट ब्रांच ने अप्लाई किया था और ये विन भी किया था। तो पाकिस्तान में तकरीबन लाहौर सेक्शन में तकरीबन 40 स्टूडेंट ब्रांचेस और वो इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते रहते हैं। आप भी जो है एज अ स्टूडेंट ब्रांच और जहाँ जहाँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इस अवार्ड्स के लिए अप्लाई करें।
और इनके डेडलाइन और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। ये सारी बातें तो हमने कर ली। IEEE आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहाँ पूछें, इस वेबिनार के अलावा कहाँ क्वेश्चन पूछें, तो IEEE लाहौर सेक्शन का फेसबुक ग्रुप है, इस जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें वो लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। आपका जो भी टेक्निकल क्वेश्चन जो रहेगी या पूछने वाला आप वहाँ पूछ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टेस्ट है, ये देख लें। अब ये पूरे एंट्रीज हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी सोसाइटी का है। अब आपके पास स्पेसिफिक सोसाइटी की मेंबरशिप होगी तो आप उस सोसाइटी के जो कॉन्टेस्ट हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ ये अब आपने खुद अप्लाई करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। या फंडिंग देख सकते हैं कौन कौन सी फंडिंग है, कौन आप यहाँ सर्च कर सकते हैं फंडिंग कौन सी अवेलेबल है, और जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IEEE ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी, ये है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। ये साइट का एक IEEE चैप्टर है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में होता है। फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करनी है, स्मोक अवेयरनेस कैंपेन कर ली, या आप जो है वो कुछ ऐसा टेक्निकल चीज डेवलप करें जिससे कम्युनिटी को और ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन की नई टेक्निक, या आपने एक कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो आप वो इस ग्रुप के थ्रू, आप ये सोसाइटी के थ्रू कर सकते हैं। और IEEE आपको फंड्स देता है। सिर्फ बात ये कि आपको प्रपोजल बना के लिख के उनको रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करना होता है और आप ग्रांट्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साउदर्न पंजाब की यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी पावरपुर, उन्होंने बायोगैस का प्रोजेक्ट बना के लिखा तो सेंड किया और उनको काफ़ी सारे फंड्स आ गए थे। तो ये IEEE का मेन पेज है, आप जाके देख सकते हैं। IEEE की एंड्रॉयड ऐप भी है, आप जाके ज्वाइन करें, इंस्टॉल करें, आपको वहाँ अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी। कि ज्वाइन IEEE आपने क्लिक करना है, सोशल मीडिया पेजेस आप लाइक कर लें तो आपको अपडेट आती रहेगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं पता चलती, अपॉर्चुनिटी का कैसे पता चले? सिर्फ फेसबुक पे जाएं, 5 मिनट लगाएं, IEEE लाहौर सेक्शन, IEEE रीजन 10, IEEE एंटरप्रेन्योरियल, IEEE रिसर्च, IEEE वर्ल्ड, IEEE डे, मतलब जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड सोसाइटीज हैं आप उनको ज्वाइन कर लें। तो ऐसा हो नहीं सकता। अब ये IEEE को OU एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ IEEE के सीनियर लीडरशिप को एक्सेसिबल होता है। सीनियर लीडरशिप से मेरी मुराद जो चेयरपर्सन और ऑफिसर्स हैं। अब ऑफिसर्स क्या चीज़ है, मैं आपको पहले ऑफिसर्स का बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक IEEE का ऑफिसर्स V2 रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे ये होता है कि जो अपडेटेड स्टूडेंट ब्रांच का चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, या जो भी आपकी टॉप की पोजीशन होती हैं, जैसे अभी फरहान है, वो यहाँ IEEE को रिपोर्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मुझे 20631, तो ये इस वक्त IEEE UET का जो है वो स्पेसिफिक कोड है। हर स्टूडेंट ब्रांच का एक स्पेसिफिक कोड होता है, रीजन जो है उसका भी कोड होता है। तो ये आप देख सकते हैं, चेयरपर्सन, ये रिपोर्टेड चेयरपर्सन है। तो जब ये रिपोर्टेड चेयरपर्सन होता है तो IEEE की डिफरेंट बेनिफिट्स और सारी चीज़ें ओवर द ईमेल भी आती रहती हैं। ये IEEE एक स्ट्रीम है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया, मेंबरशिप रिक्वायर्ड है रजिस्टर करने के लिए। हर साल ये कंपटीशन मुनक्किद होता है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में टॉप पे आ सकते हैं। अब ये तो सारी बातें हमने कर दी। IEEE हम तब से कर रहे हैं। आपको विजिबिलिटी कैसे मिलती है IEEE नेटवर्क में, या आपको जॉब कैसे मिलती है IEEE नेटवर्क में? IEEE का जॉब पोर्टल है, रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी जो आप वहाँ लाइक करते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं। ये IEEE की एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप जरूर अप्लाई करें। इसके अलावा IEEE डे, ये भी क्या चीज़ है? IEEE डे IEEE की सेलिब्रेशन है कि जब IEEE फॉर्म हुई थी। सालाना या जो है वो अपने अपने स्टूडेंट ब्रांचेस में एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप एक सेलिब्रेशन करते हैं, एक तस्वीर खींचते हैं, वो सेंड कर देता है IEEE को, और IEEE आपको $250 स्टूडेंट ब्रांच को अवार्ड कर देता है स्पेसिफिक कंपटीशन के क्राइटेरिया में। तो ये इतना आसान है IEEE के थ्रू जो है अवार्ड्स और वगैरह विन करना। ये एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट है IEEE की। तो इसी तरह IEEE 38 सोसाइटीज हैं, उनके हर एक की डिफरेंट वेबसाइट मौजूद होती है। तो आप अप्लाई करें, जो आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसको आपने एक्सप्लोर करना है। डिपेंड करता है आप पे कि आपने कैसे एक्सप्लोर करना है और आप कैसे विन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को। तो ये कुछ चीजें थी। अब आपने फॉर एग्जांपल यह वेबिनार आपने अटेंड किया, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको लिंक्डइन पे लगाएं, लिंक्डइन पे मुझे टैग करें, हमजा भाई को टैग करें, लाहौर सेक्शन को टैग करें, फरहान को टैग करें। इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के जो IEEE का पेज है उसको टैग करें। इसकी रीजन ये होती है, आपको विजिबिलिटी इसी तरह मिलती है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जब आप IEEE से आपने बेनिफिट पिक कर लिया तो इसी तरह आप मजीद अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। अपने टैग लाइन में लिखते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने SSR IEEE लॉ सेक्शन लिखा हुआ है, इसी तरह जो भी आपके एक्टिविटीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं पिछले हफ्ते जो था डिफरेंट स्टूडेंट ब्रांचेस में बात करने का मौका मिला था, तो वो टैग करें आप यहाँ IEEE मेंबर ऐड करें। इसी तरह फेसबुक पे भी आप लिख सकते हैं कि आप IEEE मेंबर है। तो ये IEEE के बारे में था। मेरी प्रेजेंटेशन तकरीबन ओवर हो गई है, तो अब हम क्वेश्चंस के लिए ओपन कर लेते हैं। तो होस्ट जैसे क्वेश्चन उन्होंने सजेस्ट करना है चैट बॉक्स में या जैसे भी होस्ट ने करना है, तो वो ओवर टू दी होस्ट। श्योर, थैंक यू सो मच मिस्टर सोनल जैन। एंड अब हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। सो बेसिकली यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड देन वी कैन आंसर देम। Okay, then we have the first question from the Farhan Ashraf itself. Who is funding IEEE? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। IEEE मुझे तो वो लाइन याद हो गया, IEEE Okay, from a Mars. non-professional technical organization working for the advancement of the benefit of the humanity. So जब बात आती है नॉन प्रॉफिट की, तो नॉन प्रॉफिट जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं चल रही होती, तो उसके फंडिंग जराए होते हैं, और वो फंडिंग आप आपके जो है मेंबर्स पे ही यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट मेंबरशिप 13.5 US डॉलर की है, वो यूज होती है डिफरेंट चीज़ों में। इसी तरह IEEE स्पॉन्सर्स ढूंढता है, कंपनीज बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं टेक जायंट्स कॉर्पोरेट, वो फंड करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो है वो कम्युनिटी में इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, वाईफाई हम सब यूज करें, आज हम सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो ऑब्वियसली वाईफाई से कनेक्टेड है। तो जो वाईफाई का स्टैंडर्ड है उसका एक स्पेसिफिक नंबर है, वो IEEE स्टैंडर्ड्स जो है उसने मुकर्रर किया हुआ है। तो वो IEEE ने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया कि आपकी जिंदगी में आप देखें तो कहीं ना कहीं IEEE का जो है वो अमल दखल जरूर होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया है फरहान ने कि IEEE को कौन फंड कर रहा है, सुमन ने अच्छा आंसर दिया कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी IEEE मेंबरशिप्स जाती हैं एनुअली। डेफिनेटली सिर्फ हम 10 लोग 15 लोग तो मेंबर नहीं होंगे IEEE के। जब IEEE के अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलियन मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड, तो सिर्फ सारे स्टूडेंट मेंबर्स नहीं है। अब मैं प्रोफेशनल मेंबर हूँ, मेरी जो IEEE मेंबरशिप फीस है वो आपकी स्टूडेंट मेंबरशिप फीस से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो है ना, सब लोग इनपुट देते हैं। उसके बाद IEEE इज नॉट जस्ट अबाउट द मेंबरशिप थिंग। IEEE have their multiple resources to like to capture the funds। आपके पास IEEE की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पूरी दुनिया में। IEEE की अराउंड 2000-3000 कॉन्फ्रेंसेज एवरी ईयर होती हैं। 2000 to 3000, between 2 to 3000 एवरी ईयर होती हैं। अब वो सारी IEEE की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, डेफिनेटली उस कॉन्फ्रेंस से भी IEEE को जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है, IEEE के पास फंड जनरेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद IEEE के पास जैसे कि आप कोई इवेंट करवाते हैं, आप एक ऑटोनमस मॉडल ट्राई करते हैं कि बने। अगर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप स्टूडेंट मेंबरशिप, स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, आप उनको कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि आपका ऑटोनमस मॉडल बन जाए, कि आपको एक्सटर्नल स्पॉन्सर ना लाने पड़े, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस से ही आपके मामला सारे सेटल डाउन हो रहे हैं। सिमिलर विद IEEE कि आप जो भी IEEE मेंबरशिप फीस देते हैं, या IEEE जो भी कॉन्फ्रेंसेस से अर्न करती है, या जो भी आप जो है वो IEEE की दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उन सब ने ऑटोनमस मॉडल्स बनाए हुए हैं कि IEEE के जितने प्रोग्राम्स हैं, फंडिंग रिसोर्सेज हैं, आपके स्कॉलरशिप्स हैं, आपके कंपटीशन हैं, उनको जितने भी आपके सारे फंडिंग्स आपकी निकलनी है, ट्रांजैक्शंस होनी है, उनको ऑटोनमस किया जाए। ऑटोनमस का मतलब है कि हर साल वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं जितना रेवेन्यू उन्होंने वापस नीचे स्प्रेड डाउन कर दें इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन्स। आई होप आपको मेरा जवाब क्लियर हो गया होगा। यस, थैंक यू। एंड मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे
आपने बोला था कि अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए IEEE भी उसे भी फंड करते हैं, राइट? तो उसके लिए वो कितना ज़्यादा लाइक फंड कर लेते हैं और लाइक किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग मिलती है? इसको ज़रा अच्छा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, IEEE के ना फंडिंग अपॉर्चुनिटीज कोई एक नहीं है, मल्टीपल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। आप हर सोसाइटी अलग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। एज एन IEEE कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी ओरिएंटेड हो जाते हैं तो फिर जो है ना आपको और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। IEEE का एक इनिशिएटिव है एपिक्स। ठीक है, एपिक्स इनिशिएटिव है। एपिक्स पे आपको मिल जाती है $1,000 $2,000 की ग्रांट मिल जाती है। उसके अंदर आपने जो है ना अपने कुछ एक टीम बनानी होती है। उस टीम के साथ आपने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल पिच करना होता है। अगर आपका प्रपोजल आपकी पिच अच्छी हो जाती है तो आपको ग्रांट मिल जाती है। फिर कहते हैं साइट। जब एपिक्स की ग्रांट मिलती है आपको आपके उस पे आपकी प्रोजेक्ट से पहले, ठीक है, मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो एपिक्स की ग्रांट मिल जाएगी आपको। अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, आपने डिप्लॉय करना है, मतलब आपने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, आपने प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट कर दी है, तो फिर आपको मिलेगी ग्रांट वहां से साइट से। तो कुछ कुछ हर ग्रांट का एक डिफरेंट सिनारियो है कि आपको किस कैटेगरी की ग्रांट चाहिए। आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ग्रांट चाहिए, प्रोडक्ट बनाने की ग्रांट चाहिए, प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट की ग्रांट चाहिए। दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली आप कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करें, या अगर आपके पास कोई ग्रांट नहीं है, आपने कोई ग्रांट भी नहीं की है, आप अपना प्रोजेक्ट उठा के कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करें। तो जब आप कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन से भी अगर आप जीत जाते हैं तो आपको फंडिंग मिल जाती है। $300 $400 एज एन विनर, विनिंग प्राइस मिल जाती है। अच्छा, एज एन अगर आप लोग कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपके जो रिलेटेड जो है वो कंपटीशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक है वेबसाइट कंपटीशन। वेबसाइट कंपटीशन रीजन 10 में भी होता है। वेबसाइट कंपटीशन ग्लोबली भी होता है। ठीक है, आप फिर हर सोसाइटी में भी वेबसाइट कंपटीशंस हो रहे हैं। आपकी IEEE रैस का वेबसाइट कंपटीशन अलग होता है, IES का वेबसाइट कंपटीशन अलग होता है। मतलब डिफरेंट सोसाइटीज भी वेबसाइट कंपटीशन जो है ना वो आपको दे रही है। उसके बाद आपके पास एक आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट। वो हर साल बाद होता है। मैट सी आपके हर साल बाद होता है, और हर साल आप जो है ना वहाँ पे अपना जो भेजते हैं, 3 फेजेस में होता है। पहले फेज के अंदर आप अपना प्रपोजल भेजते हैं। अगर आपका प्रपोजल सिलेक्ट हो जाता है तो दूसरे फेज के अंदर आपको कुछ और चीज़ें वो डिमांड करते हैं, वो आपकी उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। और थर्ड फेज के अंदर आपने अपनी ऐप बना के उनको देनी है। उसके बाद वो कंपटीशन होता है, वैल्यूएशन होती है। उसके बाद वो लोग, इनकी जो बेस्ट ऐप होती है उनको एक एक बिग अमाउंट इन US डॉलर्स मिलती है, प्लस एक टूर मिलता है पूरी दुनिया में जहाँ पे मर्जी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर जाके IEEE की। सेम विद द केसेस विद IEEE एक्सट्रीम। और IEEE एक्सट्रीम एक ग्लोबल जो है वो प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। तो उसके अंदर भी जो है ना आपको एक जो विनर्स होते हैं, मतलब IEEE एक्सट्रीम के अंदर कंपटीशन बहुत टाइट टाइट होता है, लेकिन जो विनर्स होते हैं उनको एक अच्छी अमाउंट मिलती है और वो ग्लोबली जहाँ पे भी जाके अपना वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये IEEE की कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, और कुछ IEEE के मैंने कंपटीशंस बताए जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। सॉरी टू कट यू आउट, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो तभी आप अवेल कर सकते हैं जब आप एक्सक्लूसिव मेंबर होंगे, राइट? बिल्कुल, जब आप IEEE के मेंबर होंगे आप तभी वो सारे कंपटीशंस अवेल कर सकते हैं। जब तक आप IEEE मेंबर नहीं होंगे आपको जो है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर आपको रिवॉर्ड दे रही है। तो रजिस्ट्रेशन फीस किसी की कंपटीशन की नहीं होती है IEEE में। कि आपने इस कंपटीशन में अप्लाई करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, अप्लाई की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बस कंडीशन इज यू हैव टू बी द IEEE मेंबर। On to the next question. What things are included in the merchant? अवैस पूछ रहे हैं आपसे कि merchants में क्या मर्चेंट क्या है, चीज़ें जब आप include ऑर्डर हैं? करते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तकरीबन 20 के करीब आइटम्स होते हैं, जिसमें कैलेंडर हो गया, स्टिकर्स हो गए, ये मोबाइल के पीछे जो एक होल्डर लगता है मिलता है, और IEEE का फ्लैग आता है, बैनर्स आते हैं। मतलब समझ लें वो जो सारे कंटेंट जो एक प्रमोशन के सेंस में या आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें IEEE इसमें प्रोवाइड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या ऑर्डर करना है,
वो स्टूडेंट ब्रांच ऑफिसर जो होते हैं वही ऑर्डर कर सकते हैं, और जो रिपोर्टेड होते हैं, इसलिए कहते हैं कि IEEE के आप लीडरशिप में आए, वॉलंटियर करें और IEEE से जो है वो आपके जो है मुझे चीज़ें ऑर्डर करें। IEEE MD किट उसका नाम है, आप गूगल करेंगे IEEE मेंबरशिप डेवलपमेंट किट, तो आपको वो पोर्टल आ जाएगा, उधर से आप जो है वो ब्रांच जो है वो ऑर्डर कर सकती है वंस एवरी 30 डेज कोविड से पहले। और आप जो है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अराउंड 60 या 90 डेज कर दिया। और फिर इसके लिए एक और क्वेश्चन मेरे पास था कि IEEE जो है वो हैकाथॉन्स को भी फंड करती है जिस तरह बाकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाती है। इसका आंसर मैं भी देता हूँ, उसके बाद हमजा भाई भी जो है वो इसका आंसर दे सकेंगे। वो ये है कि IEEE का जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्ट्रीम का बताया, मेडेक का बताया, और डिफरेंट कॉम्पिटिशन का, वो बेसिकली कॉम्पिटिशन्स ही होते हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं। तो इस तरह जो है वो IEEE हेल्प करती है, और आपको मर्चेंडाइज बेच के, तो डायरेक्टली जिस तरह आप कहते हैं कि डिफरेंट हैकाथॉन को फंड करने से एग्जैक्टली क्या मुराद है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है, तो हमजा भाई इसका आंसर कर दें, या अगर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो इसको मजीद एक्सप्लेन कर दें। जैसे अ, हैकाथॉन्स इस होते हैं सॉरी। अच्छा हैकाथॉन, आई गॉट योर पॉइंट कि हैकाथॉन होते हैं IEEE फंड करती है कि नहीं करती है। देखिए IEEE फंड करती है अप टू सब एक्सटेंट। देयर आर सम कंडीशंस। डेफिनेटली आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं उसके फंड्स आपको मिलते हैं। उसके फंड्स मिलने की होता ये है कि एक सोसाइटी ओपन करती है प्रपोजल्स कि हम ओपन कर रहे हैं प्रपोजल, अगर कोई इवेंट करवाना चाहता है आप इवेंट करवाएं, IEEE फंड करती है आपको। ठीक है, कुछ यंग प्रोफेशनल के रिलेटेड इवेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के रिलेटेड इवेंट्स हैं, उन रिलेटेड इवेंट्स के प्रपोजल्स आपने देने पड़ते हैं, एक ईमेल करनी पड़ती है जो है, फिर उस बेस पे आपको जो है ना $500, $400, $700, मतलब $700 $800 तक आपके प्रपोजल की वेटेज पे और आपकी क्वालिटी पे आपको जो है ना वो फंड्स मिल जाते हैं। कंडीशन ये है कि आप सब जो है, मतलब यू हैव टू बी एक्टिव इन दैट मैटर, कि आप जब डेफिनेटली किसी भी प्रपोजिंग किसी भी आपकी लाइक एजेंसी को, या किसी भी आप जो है वो क्या कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप एजेंसी को, जब भी आप दिखाएंगे स्पॉन्सरशिप के लिए तो वो आपसे पूछेगी कि आपने पहले ऐसा काम किया कि नहीं किया, आप इसको किस तरह लेके चलते हैं। तो डेफिनेटली जब आपकी ब्रांच एक्टिव होगी, आपकी ब्रांच एक्टिवली इवेंट करवा रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों को शोकेस हो रहा है कि बैरियर यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो जब आप उन एक्टिविटीज़ को एक कंपाइल करके अपना प्रपोजल राइट अप करके किसी को देंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ या फंडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन IEEE फंड्स को, IEEE एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर ज़रूर करती है, वो चाहे हैकाथॉन है, चाहे आपकी समर स्कूल है, चाहे आपका जो है वो आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं, सेशंस करवाना चाह रहे हैं, तो लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर, और यू हैव टू चूज द, यू हैव टू पिक, लाइक यू हैव नॉट चूज, यू हैव टू पिक द राइट वन। इसमें ऐसे भी है कि ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल 15 मई तक जो है वो IEEE की 2 अपॉर्चुनिटीज भी ओपन है। एक तो कोविड के रिलेटेड प्रपोजल वो मांग रहे $250 वहाँ ग्रांट कर रहे हैं, और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के वाले से एक सीरीज के वो मतलब पूछ रहे हैं टेक्निकली, तो उस पर भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव, यानी एज अ स्टूडेंट ब्रांच आप अप्लाई करते हैं, तो उस स्टूडेंट ब्रांच के प्रपोजल की बेस पे आपको जो है फंड्स एलोकेट किया जा सकता है। तो इस तरह IEEE हेल्प करती है इनिशिएटिव्स में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो मोहम्मद राफे ने पूछा है, कैन वी अटेंड IEEE इवेंट्स आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल ऑन IEEE फंडिंग। यस, ये हमजा भाई बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमजा भाई इंटरनेशनल इवेंट्स पे गए हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस वी कैन, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप, वही बात है कि जब आप कहीं पे अप्लाई करेंगे, आप इंटरनेशनल फंडिंग अप्लाई करेंगे, कंपटीशन जैसे मैंने बताया था, 2 दफ़ा मैं कंपटीशन विन हुए मेरे, तो दोनों दफ़ा मुझे US की तरफ से ऑफर लेटर था। तो एक दफ़ा मैं वो कंपटीशन जीतने की वजह से था, और एक दफ़ा मुझे IEEE में वॉलंटियरिज्म की वजह से हाल ही में था। तो अब ये है कि आप ने ये देखना होता है कि आप
किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वॉलंटियरिज्म में अप्लाई करें तो डेफिनेटली वहाँ पे शायद जो है ना वो जो है ना वो अवार्ड जीतना, वॉलंटियरिज्म में अवार्ड जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोगों ने अप्लाई किया होता है और वहाँ पे जो चांसेस है ना वो थोड़े से टाइट होते हैं। जब आप कोई कंपटीशन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक यूनिक स्किल सेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं। आप वहाँ पे अगर कंपटीशन प्रोग्रामिंग कंपटीशन में अप्लाई कर रहे हैं तो शायद वहाँ पे सारी दुनिया के वॉलंटियर्स या सारी दुनिया के वॉलंटियर्स या स्टूडेंट मेंबर्स अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के या आपके CS के या डेवलपमेंट के लोग ही अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये चीज़ डिफर करती है। और डेफिनेटली यस, अगर आप अच्छा कंपटीशन आपने अच्छा कंपटीशन विन किया है या आपने कंपटीशन में एक अच्छी पोजीशन हासिल की है, विन नहीं भी किया पोजीशन हासिल की है, तो वो भी वो फंड कर देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बहुत रिमार्केबल था, हम वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, आप लेके आने की बुला लेते हैं। तो बस ये है कि आप एक्टिव रहें, कनेक्टेड रहें लोगों के साथ, तो फिर ऑब्वियसली आपकी अपॉर्चुनिटी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप आपकी एक जब आप एक्टिव मेंबर रहते हैं तो जब डेफिनेटली पहला सवाल यही होता है कि जी आप कितने साल से IEEE मेंबर हैं, और आप कितने साल से जो है ना वो वॉलंटियर हैं। तो आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ योर मेंबरशिप, ये वो बहुत काउंट करते हैं। तो जब तक आप कनेक्टेड हैं जब आप वॉलंटियरिज्म अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि जब आप कनेक्टेड रहेंगे लोगों से तो आपकी जो है ना वो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपके अवार्ड के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जब आपके अवार्ड के चांसेस बढ़ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी इंटरनेशनल ट्रैवल की और इंटरनेशनल फंडिंग की। और चीज़ यहाँ मैं ये शेयर करता चलूँ कि अब जब वॉलंटियर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फरहान ये इवेंट करवा रहा है, यस मामा जिम इस इवेंट पे एज अ स्पीकर है, तो आप देखिएगा घंटे बाद ये मेरी पोस्ट लिंक्डइन पे पोस्ट हुई होगी। क्योंकि मैंने एक चीज यहाँ से सीखी है ट्रिपल ई से, कि आपने अपने आप को पर्सनली ब्रांड किस तरह करना है, कि रिक्रूटर्स आपको देख रहे होते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका होता ही है कि जब डिफरेंट कंपनीज ने रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट करनी होती है, वो यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट ऑफिस के पास आते हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीड्स के पास आते हैं, सोसाइटीज के पास आते हैं कि आप हमारा इवेंट करवाएं ऑर्गेनाइज। तो जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो एक तो आपकी डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेशन हो जाती है, और आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेते हैं उस कंपनी से, और इवन जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनसे आप उनको अब नो हाउ होगी है तो आप किस तरह उनसे आप स्कॉलरशिप से, अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप से आपने जॉब कैसे अवेल करनी। तो बेसिकली एक इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है उसका लिंकेज या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है IEEE स्टूडेंट लेवल पे, और जिसको आपने खुद जो है वो इस तरह बेनिफिट करना है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकें और स्टूडेंट्स को भी जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर ताहिर की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि डज IEEE प्रोवाइड एनी वेलकम किट्स? वेलकम किट्स से मुराद अगर ये मर्चेंडाइज की बात करें तो ऑब्वियसली वो एवरी 30 डेज बिफोर कोविड आप मंगवा सकते हैं, और अभी भी मंगवा सकते हैं। अभी Only student branch chair can order that. सॉरी, बिल्कुल सिर्फ स्टूडेंट ब्रांच चेयर ही वो आप ऑर्डर्स उसका ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके थोड़ी देर बाद आपको आ जाएगी। तो स्टूडेंट ब्रांच चेयर जो है वो ऐसे ही है। प्लेस करेगा, और जैसे वो ऑर्डर प्लेस करेगा वहाँ से ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा और थोड़े दिन में आप तक पहुँच जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टूडेंट ब्रांच को आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अवैस से। वो पूछ रहे हैं ड्यू टू द कोविड हाउ हैज़ दिस अफेक्टेड IEEE स्टूडेंट मेंबरशिप? इज इट स्टिल वर्थ getting the membership since most of the countries have locked down and universities are operating online and many physical events and meetups have been cancelled? तो मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव में आंसर करना चाहूँगा। पहले तो ये इसमें जो है कि IEEE मेंबरशिप वर्थ इट किस तरह, तो वो डिपेंड करता है हर एक के पर्सपेक्टिव पे। आपने किस तरह अप्लाई करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। गूगल करना है आपने आपने खुद अपॉर्चुनिटी देखनी है कि आपके लिए कौन सी रेलिवेंट है। आप पावर एंड एनर्जी सोसाइटी से हैं या आप कंप्यूटर सोसाइटी से, टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात रहेगी कि ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो फिजिकली मीटअप वगैरह कैंसिल हो गया, तो एक चीज़ मैंने ये सीखी है, पहले हम पिछले 2-3 सालों से मैं IEEE में ऑफलाइन यानी कि ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब जब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करनी हमने स्टार्ट किया तो हमारी रीच ग्लोबल लेवल पे चली गई, और ना सिर्फ लाहौर में रिक्रूटर्स आपको नोटिस कर रहे होते हैं, या बल्कि पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनली भी आप
ऑनलाइन एक्टिविटी करके तो आप ऑनलाइन जो है वो इतने ज़्यादा आ गए कि आप लिंक्डइन इतना ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े हैं, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग आपको करनी होती है, तो आप एक अच्छा जो है आपको प्रमोशन करनी भी आ जाती है, यानी अपने आप को ब्रांड करना भी आ जाता है, और अपनी आवाज़ को जो है अच्छे तरीके से रेज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को डिजिटली एंगेज करना, वो भी आप इज़िली एज़ अ IEEE जो है मैंने भी सीखा और डिफरेंट IEEE भी सीख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मेरे पर्सपेक्टिव में मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका इस साल प्रोवाइड हुआ है कि एवरी अपॉर्च्युनिटी निकलती है किसी भी इश्यू या मामले से कोविड में, तो मैं तो इस चीज़ के फ़ेवर में हूँ कि मुझे जो है वो इस चीज़ से बेनिफिट हुआ। अच्छा, यार वैसे जो क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें ऐड ऑन ये करता हूँ, डेफिनेटली कोविड की वजह से जो है वो मेंबरशिप इफेक्ट हुई है। मेंबरशिप का ग्राफ डाउन हुआ है, मेंबरशिप का ट्रेंड भी डाउन हुआ है, क्योंकि कोविड ने इतना हार्ड हिट किया है, फाइनेंशियली भी हिट किया है लोगों को। और जिसके और जो है ना वो आपके और भी काफ़ी सिनारियों से जिसने कोविड ने हिट किया। IEEE ने कोविड सिनारियों को देखते हुए फेवर ये दी कि पूरा साल जो है ना हाफ कर दिया IEEE मेंबरशिप फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर प्रोफेशनल फॉर एवरीवन एज वेल। अच्छा, अब ये है कि अब अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, सबसे पहली चीज़ देखिए कि आपका गोल क्या है, मेंबरशिप क्यों लेना चाहते हैं आप। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप जो है वो अपनी मतलब फॉर टेम्परेरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है आपका मेंबरशिप लेने का, तो फिर तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई बेनिफिट होगा, ओपन वर्ड्स। बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम लॉन्ग टर्म मेंबरशिप, क्योंकि कोविड जो है या जो लॉकडाउन सिनारियो है वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं रहेगा। आपकी 6 महीने बाद ओपन अप होने की चीज़ें, पहले भी सितंबर के अंदर सब चीज़ें ओपन हो गई। तो और ये जो है कि आपकी IEEE मेंबरशिप नॉट जस्ट अबाउट इवेंट्स और मीटअप्स। IEEE मेंबरशिप की जो वर्थ है वो इन मीटअप्स और जो है ना वो फिजिकल इवेंट्स से बहुत ऊपर है। अब वो ऊपर कैसे है कि डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले कंपटीशंस के बारे में बताया, आप वो कंपटीशंस अगर अगर आप मेंबरशिप लेते हैं आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लॉकडाउन, पर्सनली आई फाउंड लॉकडाउन एज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, मतलब कि मैंने बहुत कुछ नया सीखा है मैंने इस लॉकडाउन के अंदर। डेफिनेटली आप लोगों ने भी सीखा होगा, आप लोगों ने इसको भी एक्सप्लोर किया होगा, आपके पास नई डायमेंशन आपके पास खुली होगी। तो जब आपके पास नई चीज़ें आई होंगी आप डेफिनेटली उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एज एन IEEE मेंबर आपको वो इम्प्लीमेंटेशन या आपकी एक्सप्लोरेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो सिर्फ अगर आप फिजिकल इवेंट्स और मीटअप्स देख रहे हैं IEEE में, तो शायद आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन सब चीज़ों से ऊपर की जो चीज़ें हैं जो बेशक फिजिकल ऑनलाइन है, लेकिन और आपकी और कंपटीशन या स्कॉलरशिप्स की जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आपको जो मेंबरशिप जो है ना वो वैल्यू ऐड करेगी। और आपकी मेंबरशिप ऑफ ईयर्स जो है ना वो डेफिनेटली काउंट होते हैं। एक बंदा 5 साल से मेंबर है, एक बंदा 10 साल से मेंबर है, तो 10 साल वाला मेंबर है वो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा और उसकी मेंबरशिप जो है ना वो कॉन्टिन्यूटी भी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा जो है ना वो एक्नॉलेज होता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि पहले साल वाले 2 साल वाले लोग कहीं पे माने नहीं जाते, जाने नहीं जाते। पहले साल वाले लोग, 2 साल वाले लोग भी आपको जो है ना वो भी होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हम स्टूडेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये तो नहीं होगा ना कि स्टूडेंट तो नहीं कोई 10 साल का मेंबरशिप होगा। स्टूडेंट तो यही होगा, पहले साल का मेंबर होगा, दूसरे साल का मेंबर होगा, मैक्स 3 साल का मेंबर होगा, चौथे साल में तो फाइनल ईयर में तो वो खुद अप्लाई कर रहा होगा कहीं पे। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर IEEE मेंबरशिप ले लेते हैं ये सोचे बिना कि कोई इवेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और वो अल्टीमेटली लॉन्गर रन सोचे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। शॉर्ट रन सोच रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्गर रन सोचें और एक बिग पिक्चर सोचें तो आपको बहुत फायदा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कोविड से क्या सीखा, मैंने भी IEEE से एक चीज़ सीखी थी, कम्युनिटी बिल्डिंग, टीम वर्किंग, और किस तरह टीम डेवलप करके कोई भी इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट करना है। कोविड आया, अमेज़न वेब सर्विसेज से मैं एसोसिएट था, वॉलंटियर था, मैंने और डिफरेंट वॉलंटियर से मिलके कम्युनिटी लॉन्च कर दी, और उसके जो सोशल मीडिया पे रीच है वो तकरीबन 500,000 तक है। तो हमने इस तरह एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। अगर मैं सही मानों में कहूँ तो वो IEEE से ही लर्निंग थी पिछले 2 ढाई सालों से,
जो हमने लर्न किया और उसको जो है वो किसी और जगह हमने यूटिलाइज किया। Alright, moving on to the next question. IEEE फॉरेन कंट्रीज में स्टडी के लिए भी स्कॉलरशिप देती है। इसमें मैं एक छोटी सी मासली चीज़ ऐड करना चाह रहा था। एक मिनट तस्कीन। इसमें मैं कह रहा था कि कोविड की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, मगर इसमें जो एक अपॉर्चुनिटी है या एक प्रो है ना इसका, वो ये है कि इवेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। तो लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस है या इवेंट है ना जो स्टैनफोर्ड में हो रही है या फिर दुनिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रही है, उसके लिए हम फंडिंग नहीं ले सकते, हम वो जाके फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते। मगर अब वो ऑनलाइन होगी तो एज आई ट्रिपल मेंबर हम वो अटेंड कर सकते हैं। तो कोविड में भी इसके बेनिफिट्स हैं। चलें तस्कीन आप आगे मूव ऑन करें। बिल्कुल, IEEE की रीजनल कॉन्फ्रेंस इस दफ़ा मैंने भी अटेंड किया, हमजा भाई ने भी अटेंड किया, ऑनलाइन थी बिल्कुल, उसके हमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी मिले, तो वो बिल्कुल ऑनलाइन थी और हमने उसको मतलब ऑनलाइन अटेंड किया, सारे सेशन अटेंड किया। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी इस तरह जो है वो आती है फॉरन में। जहाँ तक बात आ गई स्कॉलरशिप की फॉरेन कंट्रीज में, तो ऑब्वियसली IEEE इस हवाले से काफ़ी हेल्प करती है। इवन IEEE जो फॉर एग्जाम्पल IEEE के जो प्रोफेसर हैं, PhD के प्रोफेसर, उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे होते हैं, ऑब्वियसली वो IEEE को जानते होते हैं पहले से, तो आप अपने IEEE ईमेल से या आप इधर के अपने IEEE प्रोफेसर से जो रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क है IEEE मेंबर्स का, तो आपको कहीं ना कहीं IEEE इस लेवल पे हेल्प जरूर करता है। मजीद हमजा भाई इसका जो है वो आंसर कर सकते हैं। ये देखिए, हर हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप एज एन IEEE मेंबर आप 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं किसी भी स्कॉलरशिप को लेने के लिए फॉरेन कंट्रीज में। फॉरेन कंट्रीज क्या, वो स्कॉलरशिप जो आपने फॉरेन कंट्री में लेना है वो आप पाकिस्तान में भी ले सकते हैं। महानूर की एग्जांपल दी थी सुमामा ने थोड़ी देर पहले। वो जो अभी UET में स्कॉलरशिप उन्होंने लिया $5,000 का। अगर वो USA, कनाडा कहीं पे भी होती, पूरी दुनिया में कहीं पे भी होती, तब भी वो ये स्कॉलरशिप विन कर सकती थी। IEEE ये नहीं है कि आप जाएंगे, यूरोप जाएंगे या आप यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे तो ही आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। आप वो स्कॉलरशिप जो आपने वहाँ पे जाके लेना है वो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। IEEE जो है ना वो उसमें कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है कि आप XYZ कंट्री में जाएंगे तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। IEEE के वही साल में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं। मैं अब आपको एक और स्कॉलरशिप मेरे माइंड में आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। IEEE का एक स्कॉलरशिप है जो सिर्फ कंप्यूटर सोसाइटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो सिर्फ कंप्यूटर सोसाइटीज को ही मिलता है। उसे कहते हैं रिचर्ड ई मॉर्गन स्कॉलरशिप। रिचर्ड ई मॉर्गन स्कॉलरशिप जो है ना वो साल में 2 दफा ओपन होता है, और जिस स्टूडेंट का GPA 3+ होता है और वो एटलीस्ट 2 साल IEEE का मेंबर होता है, ये उनकी कंडीशन है। जिस स्टूडेंट का GPA 3+ है, एटलीस्ट 2 साल IEEE मेंबर है, वो इसके लिए एलिजिबल होता है। और साल के और पाकिस्तान के अंदर हर साल 3-4 अवार्ड से मिल जाते हैं। जो विनर होता है उसको $1,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, और वो डायरेक्ट उसके अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं पैसे। स्कॉलरशिप्स के पैसे आपके किसी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं आएंगे, आपके जो है वो सेक्शन के अकाउंट में नहीं आएंगे, डायरेक्ट आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे जो आपने स्कॉलरशिप विन किया होगा। जो इसे सिमिलरली जो आपने कंपटीशन विन किया होगा, वो आपके पैसे जो है ना वो आपके अकाउंट में ही आएंगे। अगर आपने स्टूडेंट कंपटीशन विन किया है कोई अपने अपने नाम पे, अगर आप बहरिया यूनिवर्सिटी के नाम पे विन कर रहे हैं या आप सेक्शन के नाम पे विन कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली आपको सेक्शन के अकाउंट में ही आएंगे पैसे। लेकिन अगर आप अपने नाम से अपने अपने पर्सनल नाम से विन जीत रहे हैं कुछ, तो फिर वो आपको ही पैसे मिलेंगे। तो स्कॉलरशिप्स ऐसे नहीं है कि आप किसी बाहर के मुल्क जाएंगे तो ही मिलेंगे, आप वो स्कॉलरशिप्स आप पाकिस्तान में भी रह के ले सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। और कि हम जाएंगे तो फिर ही स्कॉलरशिप मिलेगा, आप पाकिस्तान में भी वो सेम स्कॉलरशिप आप पाकिस्तान में भी जीत सकते हैं। तो इसमें वो बैरियर नहीं है। इसमें आप एलेबोरेट कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्कॉलरशिप के लिए लाइक अपने चांसेस किस तरह ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी आपको जितने साल आप मेंबर रहे हैं उसी से होगा। नहीं, देखें, हर स्कॉलरशिप की ना कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं कि आप एटलीस्ट कई कई स्कॉलरशिप्स हैं कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट मेंबर्स हो, आप मास्टर्स का स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। कई अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जो है ना वो अंडर ग्रेड में ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको चीज़ें ना खुद थोड़ी सी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सप्लोर करनी पड़ेगी।
कि आप आप किस कैटेगरी में स्कॉलरशिप अप्लाई करें। अगर आप अंडर ग्रेड में स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो एक स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताया, टीचर डी मोहम्मद स्कॉलरशिप, स्टूडेंट मेंबर्स अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर सोसाइटी के स्टूडेंट मेंबर्स। वो एक ग्लोबली रिनाउंड स्कॉलरशिप है, और इसमें जो है ना वो एक आधा नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं वो। तो वो उसके अंदर चांसेस, जिस डेफिनेटली जिस स्कॉलरशिप्स को ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें चांसेस भी ज़्यादा हैं। और वो है फिर, अच्छा उसके बाद अगर आप पावर का स्कॉलरशिप है आपके पास, इंडस्ट्री एप्लीकेशन सोसाइटी का भी स्कॉलरशिप मिलता है आपको। वो ग्रांट मिलती है आपको, स्कॉलरशिप नहीं है, वो ग्रांट है बेसिकली आपने की ना। तो इस तरह बहुत सारी आपके पास जो है ना स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक, आपके जो है ना वो उसके मुताबिक। तो वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और बात वही है कि आपके डेफिनेटली मेंबर्स ऑफ ईयर काउंट करें, दो लोगों ने अप्लाई किया है, एक 5 साल से मेंबर है, एक, अगर आप स्टूडेंट मेंबर ये रिचर्ड मामन की बात करें, एक 2 साल से IEEE का मेंबर है और 3 साल से IEEE का मेंबर है, और दोनों की सेम प्रोफाइल है, सेम प्रोफाइल है। लेकिन डेफिनेटली जो 3 साल का मेंबर है वो उसमें एक एड ऑन ज्यादा है। तो IEEE की मेंबरशिप मेंटेन रखना इस वजह से भी ज़रूरी है कि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पे स्कॉलरशिप या कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी अप्लाई करनी पड़े तो भी आप उसको जो है ना शोकेस करा सकें कि आप इतने सालों से IEEE के मेंबर। आप म्यूट हैं। I'm sorry. इसके बाद next question है from Farhan. Can you elaborate how can we achieve West Lahore section branch of the year? यस, आप कैसे जीत सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कि डेफिनेटली एक लीडर ही ऐसा सोचता है कि हम क्या करें कि हम जो है ना अपनी टॉप रैंक में हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया। अच्छा, आप लाहौर सेक्शन की बेस्ट ब्रांच या बेस्ट आप जो है ना वो लाहौर सेक्शन के अवार्ड्स जीतने के लिए आप क्या कर सकते हैं। लाहौर सेक्शन के अवार्ड जीतने के लिए जो है ना आप क्वालिटी इम्प्रूव करें, इवेंट्स की टाइम पे रिपोर्टिंग करें। जो इवेंट आप कंडक्ट करवा रहे हैं, जैसे आपने इवेंट ये आज करवा दिया है, आप इसको आज ही रिपोर्ट करें, या मैक्स आप एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करें, लाहौर सेक्शन को रिपोर्ट करें। वी टूल्स पे ग्लोबल IEEE को रिपोर्ट करें कि एक्टिविटी हुई है, इसमें इतने लोग अवेलेबल थे। आप एक एक डॉक्यूमेंट बना के रिपोर्ट करें। और जो है ना आपकी जो इम्पैक्टफुल जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें सिर्फ ऑडियंस एंगेज हो रही है, और मतलब लेकिन उसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आ रहा स्टूडेंट्स की लाइफ पे, आपकी एक एज एन ह्यूमन, एज एन जो ऑडियंस है उसकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई इम्पैक्टफुल एक्टिविटी करवाते हैं जिसका एज एन इंडिविजुअल लोगों पे इम्पैक्ट हुआ है, लोगों ने उस एक्टिविटी के बाद इंस्पायर होके उस फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया है, जो उससे इंस्पायर होके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उनकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट आया है। तो डेफिनेटली जिस जो इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा आपको शो केस हो रही होती हैं, आपकी ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रही होती है। बेशक आपकी आधे घंटे की एक्टिविटी है, 30 मिनट 1 आवर की एक्टिविटी है, 1.5 आवर की एक्टिविटी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा है रादर दैन 6 घंटे की एक्टिविटी है और लोग सो रहे हैं पीछे बैठ के। तो क्वालिटी आपकी जब इम्प्रूव होती है एक्टिविटीज़ की, आपके नए प्रोग्राम्स आप लेके आते हैं। अब सिर्फ एक्टिविटी करवाना ही एक चीज़ नहीं है, आप नए प्रोग्राम्स लेके आते हैं, नए इनिशिएटिव्स लेते हैं। अब अब सुमामा हमारे साथ है, इनका यूनिटी में एक एक्टिविटी होती है APES की। वो एक इनिशिएटिव था, एक हर साल वो एक्टिविटी होती है। सिमिलरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर के अंदर जो हर साल एक एक्टिविटी करवाती हैं। एक और यूनिवर्सिटी है वो IEEE वीक करवाती है हर साल में, ठीक है। एक चैप्टर है वो हर साल समर स्कूल करवाता है, ठीक है। एक चैप्टर है वो हर साल नेशनल वर्कशॉप करवाता है। तो आप एक इनिशिएटिव लें, इनिशिएटिव उसको पूरा हर साल से कंटिन्यू करें। आपको पता होगा कि 1 साल बाद हमने ये इवेंट करवाने हैं, हमें आपको 1 साल, आप 1 साल पहले ही प्लान करेंगे अगले साल हमने ये करवाना है। तो जब आप एक प्लान करके चीज़ें चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है ना आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और आपके जब जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो जो है ना वो अवार्ड्स जो है वो आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। Thank you. Moving on to the next question. Farhan ने ही पूछा है, can you please show how to buy IEEE membership? Here, how to buy IEEE membership? It's an easy process. Just
go to IEEE.org, sign up there with your email ID, or IEEE membership will automatically will be added to your cart. और कार्ड जो है वो आप उसको चेकआउट कैसे करेंगे? आपने जो है ना अपना ऑनलाइन पेमेंट करनी है थ्रू योर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जब आप ऑनलाइन करें पेमेंट करेंगे आपको फ़ौरन ईमेल आ जाएगी, और विद इन अ सेकंड, ये इट्स नॉट लाइक कि आप जब पेमेंट करेंगे एक दो दिन बाद अप्रूव होगी फिर आएगी। इट्स लाइक इन इन सेकंड्स, 1 और 2 सेकंड्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट अप्रूव होगी, फौरन ही आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि यू आर IEEE मेंबर नाउ। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर आपको कहते हैं आपको दिखा दिया जाए तो सुमामा, कैन यू प्लीज coordinate in this चेक regard? कराता हूँ, गिव मी अ मिनट। मामा साइन आउट करके ना आप उसको दोबारा ये इनकॉग्निटो के अंदर ओपन कर लें टैब। सुमा, इट्स ओके। वो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था ना कि कैसे परचेज करनी है, किसको पैसे देने हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ भी इसमें कवर अप हो जाए, आपको शो करने की जरूरत नहीं है। इन्हें मैं लिंक भेज दूंगा जो उनसे हमें बाय करनी है। मुझे बस ना काइंडली ये कंफर्म कर दें कि वो वहाँ पे इन्हें पता कैसे लगेगा कि ये अब बैरिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ब्रांच में हो रहे हैं। अच्छा, आप जब वहाँ पे डेफिनेटली जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, वहाँ पे एजुकेशन का एक फॉर्म होगा। मामा यहाँ से ना आप उस पे जाए, जरा अपनी मेंबरशिप पे जाके ना अपने उस पे जाए, एजुकेशन फॉर्म पे जाए। ये देखिए, ये है प्रोफेशनल एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है ना आपने अपनी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल एग्जैक्टली डालना है। आपने इस पे करें, ऐड न्यू यूनिवर्सिटी पे करें, यहाँ पे लिख बैरिया लिखें। वो देखें यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी। आपने जस्ट बैरिया लिखना है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, नीचे अपने अपने सारा लिख के इसको सेव करेंगे तो ये जो है ना आपको आपकी स्टूडेंट ब्रांच में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है ना अपनी स्टूडेंट ब्रांच को ऐड कर सकते हैं, ताकि वो पता होगा कि यार ये बैरिया, ये जो जितने भी मेंबर्स हैं ये बैरिया यूनिवर्सिटी के मेंबर। All right, thank you so much. I guess that's all. I should conclude that. And I want to thank you, Mr. Hamza and Mr. Sumama, on behalf of the all BULC IEEE team. And thank you so much for all who attended this event. And for the last thing, I want you guys take care of yourself and stay safe. And I guess that's the end. Allah Hafiz. और अगर आप में से किसी ने कोई कंक्लूजन या कोई कंक्लूडेड रिमार्क्स देने हैं तो आप यू कैन गो अहेड मिस्टर I just want to say thank you very much for having us, or it's one of like most wonderful orientation we have in last few orientations. So thank you very much for joining for the audience, and thank you very much for having us for the organizers. Thank you very much. मिस्टर सुमामा। ओके, सो थैंक यू सो मच आप लोग जो भी आए, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। तो इसमें ना मैं आपको 2 फॉर्म्स दे देता हूँ, एक सेकंड। तो एक फॉर्म है वो ये है कि अगर आपने IEEE ज्वाइन करनी है एज अ मेंबर तो आपको वो वाला फॉर्म फिल करना है।
और वो जो स्वैग फॉर्म है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। स्वैग फॉर्म जो सा वो तो मैं तकरीबन अभी 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ये मेंबरशिप के। और दूसरा जो फॉर्म है वो स्वैग का, वो आपने 10 मिनट के अंदर फिल करना है, वो उनके लिए जिन्होंने यहाँ तक सेशन दिया। चलिए स्क्रीन आप एंड कर दें। Sure. Thank you so much, all of you guys. And sorry, Farhan bhai, मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ सर का. Alright. I guess you all received your forms, so kindly fill them. And I would say कि आप लोग लाजमी ज्वाइन करें IEEE, बिकॉज आपको अब ओरिएंटेशन से आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही होंगी. एंड देन आई वुड रियली सजेस्ट कि आप सब लोग इसको ज्वाइन करें एंड नेक्स्ट इवेंट्स में भी हम लोगों का पार्ट बने. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़. सो आई थिंक आप लोगों ने दोनों फॉर्म्स के लिंक ओपन कर लिए होंगे, तो मैं मीटिंग को एंड कर लूँ. अल्लाह हाफ़िज़ और सारे अपना ख्याल